Hello learners, good evening to you all. This is Kumud Ranjan Jha, PGT Commerce, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद, यूपी, आगरा रीजन. I hope you all are fine. Today we will discuss Chapter 7, Depreciation of Class 11th Accountancy, Disposal of Assets. It's part 5 video, and our previous video we have done lots of topic. In part 1 we did all the introduction part, that it features, needs for providing depreciation, factor affecting the amount of depreciation, depreciation and similar words. And then part 2 we did the methods of calculating depreciation, straight line method. However, there are so many methods, but only 2 methods are in 11th accountancy syllabus. And part 3 we did the written down value method, how to calculate amount with the help of written down value method. And part 4 we have 2 part. First part is based on the recording for depreciation, charging depreciation to assets account. When we are not preparing any separate account for the depreciation, that is provision for depreciation. And part 4.2 we did the creating provision for depreciation account, where we maintain the separate account for the provision for depreciation, and year by year it get increased. बैलेंस इकट्ठा होते रहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, और ये अकाउंट बढ़ जाता है. नाउ टुडे वी विल डू नेक्स्ट लेवल, a little bit higher topic, disposal of assets. Disposal of assets. What do you mean by disposal? What is the simple meaning of disposal? When it is needed? Okay, I want to ask one thing. Do you know that there is only one tangible assets? Actually, depreciation is charged on the fixed assets. All you know, all the time fixed assets ही होना चाहिए. यदि वो intangible होगा तो amortization होगा, और depreciation always fixed assets पे charge होता है. But there is one fixed assets which is exceptional case for the depreciation, जिस पे depreciation charge नहीं होता है. That is land. Land पे कभी depreciation नहीं होता है. याद रखिएगा इसको. Okay, let's start with the topic, disposal of asset. Disposal of asset can take place either at the end of its useful life. Assets खत्म हो गई, now it's become scrap, salvage, not in use, कबाड़ी जिसको हम बोलते हैं, or during its useful life due to obsolescence or any other abnormal factor. अपने लाइफ पीरियड में भी कोई मशीनरी, कोई एसेट डिस्पोज ऑफ के लिए रेडी हो सकती है, क्योंकि उसका वर्किंग कंडीशन जो है, जो वर्किंग प्रोडक्शन का स्टाइल है, वो हो सकता है ऑब्सोलेट हो गई हो, यूजलेस हो गई हो, आउटडेटेड हो गई हो. उस केस में भी एसेट को डिस्पोज करना होता है. इफ इट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, यदि कोई एसेट के यूजफुल लाइफ के एंड होने पर यदि हम इसको सोल्ड कर रहे हैं, द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ एसेट्स एज स्क्रैप शुड बी क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट. राइट, एक हमारी एसेट थी 1000 की, साल्वेज वैल्यू हो गया, आफ्टर 5 ईयर ये हमने सोल्ड आउट कर दिया 100 रुपीज़ में, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है. टू द एसेट अकाउंट, बाय बैंक करेंगे हम एसेट्स अकाउंट में, बिकॉज कैश इज कमिंग ईयर, एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जो भी हमारा बैलेंस है, और मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज करके इस एसेट की वैल्यू 1800 आ चुकी थी, 8 ईयर्स का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे. अब जो एसेट की वैल्यू थी वो सिर्फ 200 रुपीज़ थी, तो 200 तक हमारा एसेट था, 100 का बेचा. जो डिफरेंस होगा ये हमारा लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता था यदि हम 300 में बेचते तो ये जो बैलेंसेस होते हैं डिफरेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है.
व्हाट आई वांट टू से, डिस्पोजल की 2 कंडीशंस हो सकती है. फर्स्ट, जब उसकी यूज़फुल लाइफ एंड हो जाए. दूसरी कंडीशन हो सकती है यूज़फुल लाइफ तो एंड नहीं हुई है एसेट्स की, बट इट्स नॉट नाउ इन द वर्किंग कंडीशन, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन obsolescence or outdated. Are you getting my point? Now, what are the entry in this situation? In this regard, the following journal entry are recorded. First, तो सेल प्रोसेस है. सेलिंग प्रोसेस में कैश आएगा. बिजनेस में सबसे पहली बात सेल की होती है. कैश इज कमिंग हियर. देन वी विल राइट फॉर सेल ऑफ एसेट्स एज स्क्रैप, bank account debit to assets account. According to the rule, debit what comes in, credit was goes out. बैंक हमारे पास आ रहा है और एसेट अब हमारे पास से एज अ स्क्रैप ही जा रहा है, बट जा रहा है तो दैट्स फाइन. बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और नरेशन कर लेंगे बीइंग एसेट सोल्ड एज स्क्रैप, अमाउंट रिसीव्ड. एंड द सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन एसेट अकाउंट. अब कोई भी चीज सेल हो, 2 कंडीशन हो सकती है. आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस. सेल कभी भी विदाउट रिजल्ट नहीं होता. सेल का 2 ही रिजल्ट होगा. कोई भी सेल्स हो किसी भी तरह का, आइदर इट विल गिव प्रॉफिट और इट विल गिव लॉस. ओके, तो प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर्स किस मैनर में होगा इस अकाउंट में, वो देखते हैं. इन केस ऑफ प्रॉफिट, इफ देयर इज अ प्रॉफिट, सपोज हमारे एसेट की रिटन डाउन वैल्यू थी 1000 और हमने उसको सोल्ड आउट किया 1500 में, तो प्रॉफिट है या लॉस है. बुक वैल्यू 1000 एंड सेल वैल्यू 1500, देयर इज द प्रॉफिट ऑफ 500. Then we will write asset account debit to profit and loss with the 500. With the 500. Asset account debit to profit and loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट है. देन सपोज देयर इज अ लॉस. लॉस है तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू 1000 है. सपोज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज 1000, पिछला ही रखेंगे हम, चेंज नहीं करेंगे वैल्यू. बट सेल्स वैल्यू इज ओनली 800. हमारा जो एसेट बिका है, जो हमें रियलाइज हुआ अमाउंट, वो ओनली 800 है. तो 1000 की बुक वैल्यू की चीज़ यदि हम 800 में सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस. डेफिनेटली इट इज अ लॉस ऑफ 200. तो इन केस ऑफ लॉस द एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस है, टू एसेट अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 200. विद द अमाउंट ऑफ 200, जो जितना लॉस हुआ या जितना प्रॉफिट हुआ. तो 2 बात समझ में आ गई. तो फर्स्ट एंट्री जो होगी बैंक के रिसीविंग से रिलेटेड होगी, जो हमने बेचा है, और सेकेंड एंट्री के 2 पार्ट होंगे. इट मे बी लॉस, इट मे बी प्रॉफिट. दोनों चीज़ नहीं हो सकता है, या तो ये होगा क्वेश्चन में या ये होगा. Depend on the question, demand of the question. In case however the provision for depreciation account has been in use. ये तो नॉर्मल केसेस में हमने एसेट्स में ट्रांसफ़र किया. हो सकता है कि फर्म में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता हो फॉर रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन. देन बिफोर पासिंग द एबव एंट्रीज ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू द एसेट अकाउंट बाय रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री. यदि दूसरे मेथड से फर्म बना रहा है अपना अकाउंट, यदि क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बन रहा है, तो उस एसेट्स को, उस पर्टिकुलर एसेट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमें किसमें, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन. एंड देन एंट्री वुड बी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट.
तो पहले एसेट को ट्रांसफ़र करिए, फिर आप बेचने की एंट्री कीजिए, क्योंकि आपके पास है ही नहीं तो उसको बेचेंगे कैसे उस चीज़ को। फर्स्ट ट्रांसफर, देन पास एंट्री फॉर द बैंक। नाउ यूज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसका यूज क्या है, हम क्यों बनाते हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट is designed to provide a complete and clear view of all the transactions involved in the sale of assets under one account head. Disposal से real picture पता चल जाता है. This method is generally used when a part of the asset is sold. When a part of the asset is sold, this word is very important, mind it. Suppose a firm has total machinery of 1 lakh rupees and a piece of machinery is become obsolete. Suppose it was 25,000 की asset थी, sold हो गई. We have sold it. Then what's the purpose? तो अब पूरी की पूरी मशीनरी तो 1 लाख की सोल्ड नहीं हुई है, एक पीस सोल्ड आउट हुआ है जो कि 25,000 का था. बट बीइंग अ कंपनी वी शुड नो, बीइंग अ फर्म वी शुड नो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन दिस सेलिंग ट्रांजेक्शन. ये हमें पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस वाइज ट्रांजेक्शन में. तो इसलिए हम अलग से सेपरेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं. एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज एग्जिस्ट, और यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एग्जिस्ट करता है. एंड जर्नल एंट्रीज, एसेट डिस्पोजल प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले एसेट डिस्पोजल में एसेट का ट्रांसफर होगा. द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज एज फॉलोज. फर्स्ट एंट्री, asset disposal account debit to asset account with the original cost of asset being sold. Of assets being sold मतलब only the piece of that asset, जितने asset की बात हो रही है जिसके sold out की, सिर्फ उसके value के लिखते हैं, पूरे entire asset को नहीं लिखते हैं. Then provision for depreciation account debit to asset disposal account with the accumulated balance in provision for depreciation account. सपोज कि एसेट को 3 साल हमने यूज़ करके फिर बेचने का, डिस्पोज करने का प्लान है फर्म का. और फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1000 है, सेकेंड 1000 का डेप्रिसिएशन 1000 है, एंड थर्ड ईयर का भी 1000 है. देन एंटायर दिस 3000 ऑल ऐड करेंगे, 3000 उससे स्टार्ट हो गई एंट्री. ठीक है. विद द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यूजुअली ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं गिवन होगा तो निकालना पड़ेगा कि अब तक हमने टिल द डेट उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है. एंड द फाइनल जो एंट्री है तो बहुत ईजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जो आपको विद द नेट सेल्स प्रोसीड, जो आपको प्रोसीड से अमाउंट मिलता है. बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल विद द नेट सेल्स प्रोसीड. ये जर्नल एंट्री है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ अब रिजल्ट क्या होगा इस एसेट डिस्पोजल का? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में अल्टीमेटली शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. फाइनली दोनों चीजें हो सकती है. इफ the debit balance on the account indicate loss on disposal and would be dealt with as follow. यदि किसी एसेट डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट बैलेंस फाइनल रिजल्ट हमें मिला है तो 100% डेफिनेटली दिस इज द लॉस. द डेबिट बैलेंस ऑन द अकाउंट इंडिकेट लॉस ऑन डिस्पोजल एंड वुड बी डेल्ट विथ एज फॉलोज एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल टू एसेट डिस्पोजल. जो हमारे केस में मैंने एग्जाम्पल लिया था तो लॉस कितने का था, 200 का था, तो 200 से एंट्री होगी. इफ द क्रेडिट बैलेंस हो, यदि एसेट डिस्पोजल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, देन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल एंड वुड बी क्लोज्ड बाय द फॉलोइंग जर्नल एंट्री. तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल टू प्रॉफिट एंड लॉस.
तो हमारे इस एग्जाम्पल में कितने का प्रॉफिट था? 500 का, तो 500 से एंट्री होगी, ये याद रखना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस ऑफ डिस्पोजल अकाउंट मीन्स लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, इट विल हेल्प अ लॉट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। Current Enterprises has the following balances in its book. Very good, books already given है आपको balance. On 1st March 2005, gross value 6 lakh, provision for depreciation rupees 2,50,000, a machine purchased for rupees 1 lakh on November 1st 2001, having accumulated depreciation amounting to 60,000, was sold on April 2006 for rupees 35,000। ये बैंक की अमाउंट हो गई 35,000 और इसका accumulated depreciation अपने पास कितना हुआ लर्नर्स? accumulated depreciation ध्यान से देखिए 60,000 एंड बैंक का अमाउंट कितना? 35,000 में हम बेच रहे हैं। ये ग्रॉस वैल्यू थी मशीनरी की 6 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,50,000, अ मशीन परचेज फॉर 1 लाख ऑन नवंबर 1। ठीक है, तो ये जो नवंबर में परचेज की गई है इस मशीनरी की बात हो रही है। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑलवेज डील विद द वर्किंग नोट्स। हमें सबसे पहले वर्किंग नोट करना होता है, इससे आपका परफेक्शन आता है क्वेश्चन में और मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वर्किंग, computation of loss on sale of machinery, rupees, original cost of the assets being sold is 1 lakh। ये मशीन 1 लाख की थी नवंबर में जब हमने खरीदा था, ये क्वेश्चन में गिवन था। एंड लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 60,000। अब तक इस पे हम 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे। तो बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 40,000 एंड सेल वैल्यू कितना रियलाइज हुआ? 35,000। तो जो मशीनरी आज के डेट में 40,000 की थी उसे हमने 35,000 में बेच दिया। आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। डेफिनेटली इट्स अ लॉस। 40,000 की हम 35 में बेच रहे तो लॉस ही है। तो कितने का? हाउ मच? 5,000। डन इट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। अब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम। सबसे पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। हमने क्या कहा था? हम बैलेंस को ट्रांसफर लेंगे मशीनरी अकाउंट से। अप्रैल 2006 सेलिंग वाला डेट ही आप देंगे डेट के कॉलम में। हियर यू कैन सी एक लेजर फॉर्मेट किया हमने, सेलिंग की डेट लिखी, मशीनरी टू मशीनरी हमने लिखा 1 लाख and by provision for depreciation given in the question is 60,000 and bank receive on the same date is 35,000 by bank 35,000. When you balance the account, तो 1 lakh is here and here is the 95,000, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। और क्या कहा था? तो बैलेंस आपका क्या बच रहा है? डेबिट ज़्यादा हो रहा है और क्रेडिट कम हो रहा है। डेबिट साइड में कितना है? 1 लाख और क्रेडिट साइड में कितना है? 95,000। तो एक्स्ट्रा डेबिट है तो ये क्या है? लॉस है। हम वर्किंग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000 का आ गया हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब कौन सा अकाउंट बनेगा? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस BD 6 लाख। आपको ये कंफ्यूज मत नहीं होना है कि 6 लाख भी है 1 लाख भी है तो हम कौन से अमाउंट को लें। विच अमाउंट वी शुड कंसिडर? ऑलवेज कंसिडर द पीस ऑफ द पार्ट ऑफ मशीनरी जिसको सोल्ड आउट कर रहे हैं। पूरे एंटायर मशीनरी से हमें मतलब नहीं है। ये देखिए टू बैलेंस BD में हमने क्या लिखा हुआ है? 6 लाख, रहने दीजिए। बट ट्रांसफर डिस्पोजल में कौन सा अमाउंट करें हम? 1 लाख वाली मशीनरी सोल्ड हो रही है तो बाय डिस्पोजल विद द 1 लाख।
नाउ द रिमेनिंग बैलेंस, यदि मैं बैलेंस करूँ इस अकाउंट को, अभी तो फर्स्ट डे है, सपोज मैं 31 मार्च को जब बैलेंस कर रही हूँ तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या बचेगा अपने पास? 5 लाख, क्योंकि 1 लाख वाला हमारा बिक गया मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन की जो भी एंट्री है उसके बाद जो भी बचे। ठीक है, तो दोनों अकाउंट हमने बनाया। बस एसेट डिस्पोजल में थोड़ा केयरफुल रहना है कि आपको बैलेंस देखना है कि जो पार्ट बिकने जा रहा है उसी की एंट्री करें, हम एंटायर मशीनरी की एंट्री नहीं करेंगे। ओके, इन दिस वीडियो वी हैव डन हाउ टू डील विद द डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द पार्ट, कौन सा पीस बेच रहे हैं हम, टिल द डेट उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, उस अमाउंट को जब लेस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उसको कंपेयर किससे करेंगे? सेल्स वैल्यू से। इफ सेल्स वैल्यू इज हायर देन इट्स प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट, एंड सेल्स वैल्यू इज लोअर मीन्स दिस इज द लॉस। ओके, thank you for your cooperation. Bye, stay safe, stay home, happy reading.